Good afternoon, one and all. वेलकम टू साइंस सिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हम लोग जानते हैं वैसे आज तो वर्ल्ड स्पैरो डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर आज वर्ल्ड स्पैरो डे के साथ साथ में हम लोग हैप्पीनेस डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हैप्पीनेस डे के रिगार्डिंग आज गुजरात साइंस सिटी में हम लोग पॉपुलर साइंस लेक्चर अरेंज कर रहे हैं। आज का पॉपुलर साइंस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है चैलेंजेस इन अ टाइगर कंजर्वेशन इन कंट्री। तो साइंस सिटी ऐसे बहुत सारे पॉपुलर साइंस लेक्चर करते रहते हैं, जिसमें हम लोग बात करें तो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है, काफ़ी क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर में करते रहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो पॉपुलर साइंस लेक्चर का चैलेंजेस इन टाइगर कंजर्वेशन इन कंट्री। तो आज हम लोग जो वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, टुमारो वी हैव अनदर डे, इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट्री। और परसों हम लोग 22 को देखें तो वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद में मीटरोलॉजिकल डे है। तो इसके रिगार्डिंग में हम लोग देखें तो नेचर के साथ में चारों दिन है। तो इसी हिसाब से आज हम लोग बात करेंगे टाइगर के ऊपर में। तो आज टाइगर के लिए हमारे जो पॉपुलर साइंस लेक्चर के एक्सपर्ट जो है उनको मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ। Today our expert is Surendra Mehra sir. Sir, welcome on Science City sir, social media. Sir, welcome. Good afternoon. Thank you, Pulkesh ji. Thank you very much. Yes sir. So we have a short profile, sir. Surendra Mehra sir is a member of Indian Forest Service of 99 batch. He graduated as a Bachelor of Technology in Electronics and Communication Engineering from Regional Engineering College, Kurukshetra, and served in India Engineering Service before joining IFS in 1999. He received Uttarachal State Forestry Award in 2003 for excellency in civil services reforms. He received PG Diploma in Wildlife Management from Wildlife Institute of India, Dehradun in 2006-07. He also holds a PG Diploma in Environmental Law from National Law School, Bangalore. He has worked as a Deputy Conservator of Forest, Haldwani, Nandudhar Wildlife Sanctuary, Corbett Tiger Reserve, and Rajaji National Park, Rudraprayag. He has also worked as a faculty in Central Academy for State Forest Service, Dehradun. In recent years, he worked as a Conservator of Forest, Western Circle, Haldwani, and Chief Conservator of Forest and Field Director, Corbett Tiger Reserve. He has written first management plan of Nandudhar Wildlife Sanctuary. He successfully conducted the wildlife monitoring study in Western Circle and also authorized its report titled Status of Tiger Habitat and Corridors in Western Circle, Uttarakhand. His field of interest are wildlife management, legal issue in forest and wildlife, information technology, GIS, and remote sensing and wildlife photography. He has also authorized 2 books titled as a Legal Forestry in 2004 and Study and Practice of Wildlife Laws in India in 2010. Now sir is presently working as a Deputy Inspector General, National Tiger Conservation Authority, National New Delhi, and also pursuing his PhD in Wildlife Science from Wildlife Institute of India, Dehradun. So today friends, we have a very good opportunity to attend the lecture and know about more about tiger conservation. So I request to sir for lecture. Sir, please. Thank you, Pulkesh ji. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज जो लोग इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं, जो टॉपिक है मैनेजमेंट चैलेंजेस इन टाइगर कंजर्वेशन। टाइगर कंजर्वेशन
उनके लिए ही एक चुनौती का विषय नहीं है, जीव संरक्षण के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि टाइगर भी एक हमारा जो पूरा इकोलॉजी है, उसका एक पार्ट है। उसकी मैं बात करूंगा, वो केवल टाइगर पर ही लागू नहीं होती है, बाघ पर ही लागू नहीं होती है, वन्य जीव पर या जंगल पर सामान्य रूप से वो लागू होती हैं चीजें। अगर हम बात करें वन्य जीव संरक्षण की या की, ये हिंदुस्तान में या बाकी देशों से यदि इसको, तो हिंदुस्तान में है वो एक जिसे कहना चाहिए कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कल्चर और उसकी हमारी जो माइथोलॉजी है उससे भी जुड़ा हुआ है। चीज है जो वन्य जीव संरक्षण के बारे में और भारत के बारे में विश्वास, लोग प्रकृति में विश्वास, हर एक जीव में विश्वास करते हैं कि हर एक जीव को जीने का अधिकार है, इस परिभाषा में वो विश्वास करते हैं। बहुत साल पहले जब वन्य जीवों का प्रबंधन किसी, तो उस समय पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग थे, ऐसे सेक्रेड ग्रुप्स जो कि उनके गांव और जंगल के बीच में जंगल उसको बनाकर रखते थे। उनको मालूम था कि हमारे पास कुछ जंगल ऐसा होना चाहिए जो हमेशा सुरक्षित रहे। वो होते थे जनरली जो पानी के सोर्स होते हैं, ऐसे स्थान जहां से पानी लोगों को मिलता है, तो स्थानीय लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो उस जंगल को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस जंगल को सुरक्षित रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनका जो भविष्य है। फिर धीरे धीरे जब विकास होने लगा तो बहुत सारे ऐसे कस्टमरी रेगुलेशंस भी आए जो हमारे समाज में हमारे स्थानीय लोगों ने अपने आप से जो नियम बनाए, वो किसी सरकार ने नहीं बनाए थे। जीवों का जो लोग ऐसे ऐसी हिंदुस्तान में ऐसी ट्राइब्स भी हैं जो हंटिंग करते थे, या पुराने समय में वो किसी एक पर्टिकुलर समय में हंटिंग को बैन रखते थे। जो फीमेल जो थे उनको हंट नहीं करते थे, या एक किसी पर्टिकुलर लाइफ स्टेज पे कोई वन्य जीव है तो उसको हंट नहीं करते थे। महत्वपूर्ण था जो कि कस्टमरी रेगुलेशन लोगों ने अपने आप से चलाया। तो हिंदुस्तान में जो, या भारत में कहें हम, तो मुख्य जो ये है। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे जब हम आज की पीढ़ी तक आए तो इसके बीच में बहुत परिवर्तन आए। हिंदुस्तान में जो क्षण में जो बाधाएं आई वो शुरू हुई थी मेडिवल पीरियड में। इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ मैं, मेडिवल पीरियड से प्री इंडिपेंडेंस के बीच की बात कर रहा हूँ। केवल मुगल इन्वेजन ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं था, लेकिन उसके साथ साथ जो राजा महाराजा थे या फिर उसके बाद ब्रिटिश लोग आए, उन कारणों से भी जो वन्य जीव थे उनको बहुत नुकसान हुआ। इसको शिकार के रूप में धीरे धीरे शिकार बढ़ने लगा। देखिए, शिकार भी दो प्रकार से हुआ। जो मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया, वो जो शिकार थे वो स्थानीय लोग अपनी जरूरतों के लिए करते थे। इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले मेडिवल पीरियड में या ब्रिटिश लोगों के समय में या राजा महाराजाओं के समय में जो शिकार होने लगा, वो शौक के लिए शिकार करते थे। पर वो लोग शौक के लिए शिकार करते थे, उनको ग्राउंड भी कहा गया। देखिए, ये जो पूजा थे उन्होंने पूरे लाइफ भर में 1000 से ऊपर टाइगर की उन्होंने हंटिंग की थी या शिकार किया था। बहुत ज्यादा बड़ा। आज पूरे हमारे देश में लगभग 3500 के आसपास बाघ हैं या टाइगर हैं। उसमें से इतने टाइगर एक व्यक्ति ने पूरे अपने जीवन काल में हंट किए थे। तो मेरी स्लाइड ठीक से देख पा रहे हैं? जो मैं स्लाइड बोल रहा हूँ वही स्लाइड देख पा रहे हैं मुकेश जी? ठीक। उसके बाद जब हिंदुस्तान में आए कॉलोनाइजर,
था उसको एक एक और रूप दिया और उन्होंने जो शिकार था उसको एक प्रिविलेज के रूप में दिया। तो उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां पर शिकार होता था, लोग भी करते थे या बाकी लोग भी करते थे। उन्होंने बहुत सारे शिकार के स्थानों को उन्होंने सेंचुरी में कन्वर्ट करना शुरू किया और उनका जो उस समय का जो उद्देश्य था, उनका उद्देश्य सिर्फ ये था, ये सिर्फ कर पाए या फिर जो प्रिंसली स्टेट के लोग हैं वो कर पाए, जो सामान्य नागरिक है उनको शिकार का अधिकार ना हो। शुरुआत हुई लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छी चीज जो हुई, जो हंटिंग ग्राउंड्स थे या शिकार गाह थे, धीरे धीरे नेशनल पार्क या सेंचुरी का रूप दिया जाने लगा। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क 1936 में बना था, पहले का था 1947 में। तो उसके पश्चात ऐसी थी जो हमारे देश के लिए विकास ही नहीं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को एक बेहतर ढंग से चलाने के लिए भी बहुत बहुत सारी चीजों की आवश्यकता थी। जो था फूड ग्रेन यानी जो सामान्य रूप से लोग करते हैं, गेहूं चावल। उस समय पर हिंदुस्तान में जब आजाद होने के बाद हम लोग की देशों से इसको इंपोर्ट करते थे, इसी भारत के सामने कि प्रकार से हम अपने आप में स्वावलंबी बने, कि हम अपने आप अपने देश में जो फूड ग्रेन की आवश्यकता है उसको पूरा कर सकें। 60 के दशक में ग्रो मोर फूड प्रोग्राम के तहत ऐसे थे जिनको हमने खेतों में कन्वर्ट किया, एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया और उसके कारण भी बहुत सारे वन्य जीवों के जो वास स्थल थे उनका नुकसान भी हुआ। बट लेकिन वो हमारी जो भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत समय से ही बाकी देशों की बनिस्बत जो हमारा किलोमीटर जो हमारी डेंसिटी है लोगों की जनसंख्या की, वो बहुत ज्यादा बाकी देशों से थी। ध्यान में रखते हुए जब पहले 20 वर्ष जो आजादी के बाद के थे उनमें ये संघर्ष होता रहा कि आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जरूरी है, एग्रीकल्चर बहुत जरूरी है। लेकिन धीरे धीरे फिर ये भी रियलाइज किया गया कि जंगल भी जरूरी है और वहां के जो वन्य जीव हैं। तो 1973 में उसी समय 1973 में एक कार्यक्रम भारत सरकार ने योजना, इस बात उनकी जो चेष्टा थी वो ये था कि जो बाघों की जो जनसंख्या है उसका एक ऐसी संख्या रहे जिसके कारण बाघों भारत में जो स्थान है वो समाप्त ना हो या भारत में भाग खत्म ना हो जाए हमेशा के लिए। तो उसकी एक ऐसी वायबल पॉपुलेशन को बचाए रखना था, बाघों को बचाए रखने की मुहिम ये प्रोजेक्ट टाइगर से शुरू हुई। ऑफ कोर्स उसके बाद उसका साइंटिफिक और इकोनॉमिक और एस्थेटिक कल्चरल और इकोलॉजिकल उसकी वैल्यूज भी थी जो कि बहुत जरूरी थी समझना। साइंटिफिक तो इसलिए कि क्योंकि महत्वपूर्ण चीज है कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज पर डिपेंडेंट होती है, साइकिल होता है, यदि वो पूरा नहीं होता है तो उससे खतरा होता है। इसलिए कि जो जंगल है वो देश के लिए एक विकास का भी माध्यम है, क्योंकि इकोनॉमिक जो जंगल है वो चाहे टिम्बर के रूप में हो या बाकी ऐसी उसकी इकोलॉजिकल वैल्यूज हैं जो हम अदरवाइज उसको पैसे, जैसे कार्बन है, आजकल हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज, हम कहते हैं कि कितना कार्बन कोई जंगल या कोई चीज अपने आप में सोखती है या कितने कार्बन को बचा के रखती है। क्षेत्र है जहां पर टाइगर है या बाकी वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र, जो जंगल है वो बाकी जंगलों से बेहतर, इसलिए ये बहुत जरूरी था कि ऐसे जंगलों को बचाया जाए। इस समय 50 टाइगर रिजर्व है, बल्कि एक टाइगर रिजर्व इसमें और ऐड हो गया। इस समय पर हमारे देश में टोटल 51 टाइगर रिजर्व है। जो सबसे नया टाइगर रिजर्व है वो अभी 2 हफ्ता पहले
श्रीविल्पत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व केरला के पेरियार टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है, वो नया बना है। हमारे देश में जो टाइगर रिजर्व है ये 18 राज्यों में है। गुजरात में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, लेकिन गुजरात में एक तो ऐसे हैबिटेट हैं जैसे जो वो दक्षिणी गुजरात में डांग का जंगल है, वहां पर कि बाघ भी वहां हो सकता है, या पिछले वर्ष से 1 वर्ष पहले बाघ की वहां पर एक उपस्थिति भी दर्ज की गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जितने भी लैंडस्केप है वो खाली बाघ के लिए नहीं बल्कि बाकी वन्य जीवों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें पूरे देश में 2.21% तो पूरे देश का जो क्षेत्रफल है उसमें टाइगर रिजर्व है हमारे, जो पूरे 51 टाइगर रिजर्व। क्या किया है जो हमारा मैनेजमेंट बाघों के संरक्षण का या वन्य जीव संरक्षण का, उसका क्या फायदा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि इस समय देश में हमारे देश में पूरे विश्व के 70% बाघ हमारे देश में है। उसके अलावा जो इसके बेनिफिट्स की बात अगर हम करें तो जो स्थानीय लोग हैं उसको इससे सीधे तौर पर परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से उससे बहुत लाभ है, जैसे लेबर जनरेशन या और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं जो टूरिज्म से होती हैं। तो अगर देखा जाए तो 2.5 मिलियन यानी 1 करोड़ से अधिक मैन डेज जो हैं वो लोकल लोगों के लिए जनरेट किए जाते हैं माध्यम से। बताया कि जो टाइगर रिजर्व्स हैं या फिर वन्य जीवों के लिए बाहुल्य हैं, वन्य जीव बाहुल्य हैं, वहां पर हमने कार्बन एक पेड़ों के रूप में स्टॉक किया है। ऐसे क्षेत्रों में ना तो हम कोई कमर्शियल फेलिंग करते हैं ना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। रिसोर्स है जो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले समय में हमें इसको समझना भी पड़ेगा। तो टाइगर रिजर्व हैं वो अपने आप में बहुत सारी ऐसी टाइगर रिजर्व हैं या अन्य, वो लोगों को इकोसिस्टम सर्विसेज भी देते हैं जिसको हम सामान्य रूप से अदरवाइज हम उसको पैसे की कोई वैल्यू नहीं देते हैं। जैसे पानी है, शुद्ध हवा है, ये सब ऐसी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जो हमें जंगलों से मिलती हैं लेकिन हम उसको वैल्यू नहीं करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है, जैसे मैंने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात की, कि जो टाइगर के जो फॉरेस्ट है वो 1 बिलियन के आसपास का जो कार्बन है, बिलियन रुपीज उसको हर 1 साल में सिक्वेस्टर करते हैं। वो सिक्वेस्टर करते हैं जिसके लिए आपको खर्च करने पड़ते हैं। की बात करते हैं जिसमें ऐसे इंडस्ट्रीज के लोग जो इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं लेकिन उनके देश में जो कार्बन है वो एक लिमिट से ज्यादा वो तो ऐसे देश वो ट्रेडिंग करते हैं कार्बन की। किया गया है ये फिगर जो कि 1 बिलियन पर ईयर का है। जो टाइगर रिजर्व है वो 350 से ज्यादा नदियों के स्रोत हैं, यानी 350 से ज्यादा नदियां वहां से निकलती हैं। चीज है कि नदियां जो कि पूरे देश में या स्थानीय लोग हैं उनके लिए पानी उपलब्ध कराती हैं, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए हो चाहे इरिगेशन के लिए हो। संख्या उसके पश्चात जब से प्रोजेक्ट टाइगर हमने शुरू किया तो 1972 में बढ़ती, तो अब हम ऐसे स्टेज पर पहुंचे हैं जहां पर बैलेंस बना, हमारे बाघों की संख्या इतनी है तो फ्यूचर में कई साल तक मेंटेन, अल्टीमेटली हमें ये भी देखना पड़ेगा वो कितने बड़े हैं, स्केप है या टाइगर का बाघ का जो लैंडस्केप है वो कितना बड़ा है, कितने टाइगर रह भी सकते हैं। चीज है, हमें ऐसा नहीं है कि हम टाइगर की जो संख्या है तक, तो वो तो एक तरफ एक कैप्टिव मैनेजमेंट हो जाएगा। इसके कारण भी हम जानेंगे, जो हम चैलेंजेस की बात करेंगे हम जो है टाइगर कंजर्वेशन में हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन जो कि है वो टूट रहे हैं, यानी एक वासस्थल दूसरे वासस्थल से जुड़ा नहीं है, यानी एक जंगल दूसरे जंगल से जुड़ा नहीं है, वो मतलब आपस में
बीच में से दूसरी एक्टिविटी हो रही है, अनसस्टेनेबल एक्टिविटी हैं, जो अनसस्टेनेबल लैंड यूज एक्टिविटी हैं, जो कि बड़े बड़े जंगलों के बीच में होती हैं। बीच में होने से उनकी कनेक्टिविटी को, जैसे हमने कोई इंडस्ट्री बनाया है, या फिर कोई रोड है, या फिर रेलवे है, या फिर कैनाल है, यदि उसको उसको ठीक प्रकार से उसमें मिटिगेशन मेजर नहीं लिए गए हैं, नहीं लिए जाएं, विधियां हैं वो हमारे जो जंगल हैं उनमें कनेक्टिविटी को खत्म करती हैं। कॉन्फ्लिक्ट या ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट या मैन एनिमल नेगेटिव इंटरेक्शन भी कई बार हम बोलते हैं इसको, है वो अपने जंगल से बाहर भी चले जाते हैं, ह्यूमन हैबिटेशन में चले जाते हैं, चले जाते हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इनको हम एक एक करके धीरे धीरे करके सबको बात करेंगे। पोचिंग और वाइल्ड एनिमल बॉडी पार्ट, ये भी बड़ा चैलेंज है देश के लिए। कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इनसफिशिएंट इन्वॉलेट एरिया, कि पूरे जो जंगल हैं बाघों के लिए, क्या उनके लिए वो जो हैबिटेट है, क्या होने चाहिए जिसमें कोई भी मानव दखल नहीं है, जिसमें बिल्कुल टोटली उनको प्रोटेक्टेड रखा है, जिनको कोर एरिया हम बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन मैंने बताया, बहुत सारे के बाद बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर के लिए की गैर वांछनीय गतिविधियों के लिए डाइवर्ट हुए। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें सड़कें हैं, रेल है, भी जो लैंड हुए। तो कंटिन्यूअस फॉरेस्ट पैच था, वो कंटिन्यूअस न रह के वो 2 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में, इससे ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड हो गया। अब हम ये समझना चाहेंगे कि लैंडस्केप क्यों जरूरी है, कि अगर हम कहते हैं या फिर किसी दूसरी एक्टिविटी के लिए वो लैंड डाइवर्ट हो गया जंगल के बीच से, तो वो किस प्रकार से हानिकारक है, या बाकी वन्य जीव हैं उनको हम बहुत कम क्षेत्र में बांध कर नहीं रख सकते हैं। पॉपुलेशन होने के लिए जरूरत होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि ये जो जंगली जानवर आते हैं, तो इसीलिए एक कारण इनका जो जेनेटिक मिक्सिंग है वो भी होता है। अदरवाइज अगर एक ही स्थान पर अगर टाइगर रहता है टेरिटरी, तो जो जो जिसको हम कई बार बोलते हैं इनब्रीडिंग, वो भी होती है, चाहे वो शेर हो। लैंडस्केप की आवश्यकता है। 2 साल पहले हमें एक चला एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इसलिए बहुत जरूरी है कि वन्य जीवों के लिए बड़े लैंडस्केप या बड़े लोगों का होना जरूरी है। लोगों को बताऊं कि कोरी किसको है, किसी भी वन्य जीव के लिए भी सकता है, हाथी के लिए, अगर नीचे की तरफ बोलते हैं, और ये सब जो सफेद सफेद या जाते हैं, पानी के जाते हैं, खाने के पट्टी है। इन ऐसे पतली सी पट्टियों को जो दो जंगलों को जोड़ी है, उसको हम कॉरिडोर। यदि बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि वन्य जीवों के जो बाधा डालती है, जैसे नीले रंग से जो लाइन दिखाई है, ये एक नेशनल हाईवे है, जा रहा था। तो हम लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अप्रोच किया और उनको कहा कि आप नेशनल हाईवे जब बनाएंगे तो इसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि यहाँ पर हम वन्य जीवों के लिए अंडरपास दें, जिसमें के लिए
ब्रिज होगा और जिसके नीचे से जानवर जा सके, जंगल से इस जंगल में जाने के लिए दिक्कत ना हो। अदरवाइज क्या होगा, यदि हम इसको हम 6 लेन बना देंगे तो वन्य जीव जब यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएंगे या ऊपर से नीचे नहीं आ पाएंगे तो वो आबादी के अंदर जाएंगे, और आबादी के अंदर जाने पे एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिससे अल्टीमेटली जो ह्यूमन लॉस भी बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जो हमने पूर्व में जो अच्छे कॉरिडोर थे, जैसे ये भी एक कॉरिडोर है, ईस्टर्न राजा जी और वेस्टर्न राजा जी को जोड़ता है। पहले हमने उसमें दूसरी एक्टिविटी, कोई नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी की, अब उस नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी को हम दोबारा से फॉरेस्ट्री एक्टिविटी में कन्वर्ट करके ऐसे क्षेत्रों में हम स्थापित कर रहे हैं ताकि वन्य जीवों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी रहे, इससे बचा जा सके। लैंड यूज बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस प्रकार का लैंड यूज कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक स्थान पर ही हो, या कई सारे ऐसे लैंड यूजेस होते हैं वन्य जीवों के लिए बहुत सहायक होते हैं। हालांकि वो जंगल तो नहीं होते हैं, लेकिन जंगल जैसा लैंडस्केप होता है। आपको एक एग्जांपल दूं, ये कॉर्बेट टाइगर नदी, और ये जो गांव है, बहुत सारे गांव थे यहाँ पर नदी के किनारे। किसी वन्य जीव को इस जंगल यहाँ से जाने के लिए अगर यहाँ जाना हो तो वो बीच में आबादी है, वो नहीं जा पाएगा। यहाँ के जो उनमें लोग हॉर्टिकल्चर करते थे, यानी जो फलों के जो पौधे हैं वो उगाते थे। और जब ये आम और लीची खेतों में होता था तो उस समय पर जो वन्य जीव थे वो बड़ी आसानी से अब यहाँ से यहाँ जा सकते थे, पानी पीने के लिए भी इस नदी में जा सकते थे, या उनको इस जंगल में जाना है तब आसानी से जा सकते थे। लेकिन धीरे धीरे जब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में टूरिज्म बढ़ा, ये जो गांव थे, इस गांवों में लोगों ने जो अपनी जमीन थी वो जो रिसोर्ट ओनर है या होटल है उनके लिए बेच दी। देखेंगे बहुत बीच बीच में छोटे छोटे नीले पैचेज हैं, वो सारे स्विमिंग पूल्स हैं यहाँ के जो रिसोर्ट्स हैं उनके। ऐसे फिर क्या हुआ कि जो ये पूरी लाइन थी, एक पट्टी थी जो जानवरों को एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल होती थी, ये पूरा बंद हो गया। कि जो जब जानवर यहाँ से यहाँ जाता है तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इंडिविजुअल भी मारे जाते हैं या जानवर को भी नुकसान होता है। यहाँ पर एक ऊपर में एक छोटी सी पट्टी है जिसके कारण जानवर एक दूसरे दूसरी जगह जाते हैं। तो इसलिए जो लैंड यूज चेंज है वो भी एक बहुत जरूरी है। यदि आपको कॉरिडोर में या जंगल के आसपास के क्षेत्रों में और एग्रीकल्चर न करके ऐसा लैंड यूज करें, कमर्शियल एक्टिविटी न करके जो कि आपको अच्छे रिटर्न दे सके इकोनॉमिकली, और उससे वन्य जीवों को भी कोई नुकसान ना हो। जैसे मैंने हॉर्टिकल्चर बताया, एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे ना वन्य जीवों को नुकसान है और जो बाकी लोग हैं उनको भी बेनिफिट उससे हो रहा है। तो लैंड यूज जो ऐसे स्थान है जहां पर जो एक जंगल से दूसरे जंगल को जोड़ता है, कॉरिडोर्स में बहुत आता है। ह्यूमन एनिमल नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बहुत खुश भी हैं कि हमारे देश में इतने बाघ हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हम जो बाघों की संख्या है वो एक लिमिट से ज्यादा आगे नहीं जा सकते हैं। और उसके बहुत सारे कारण है कि एक लिमिट से आगे जाने में तो जैसा मैंने बताया साइंटिफिक तरीके से भी वो सही नहीं है, क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, जीन पूल होगा, वो आपस में ही ब्रीड करते रहेंगे, तो कोई भी बीमारी आएगी तो जिसमें जो वन्य जीव उनकी एक साथ बहुत डेथ हो सकती है। तो कॉन्फ्लिक्ट है ये, इसको हमें इस तरह से भी समझना पड़ेगा कि वन्य जीवों की जनसंख्या हम कर सकते हैं ताकि जहां पर वो कॉन्फ्लिक्ट का रूप धारण कर ले। कई बार ऐसा होता भी है लेकिन कि वन्य जीव जो है वो जंगल से बाहर आ जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि आपको कि जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं ये बड़े अच्छे सोर्स भी हैं। यानी अब जैसे मैंने बताया कि 350 नदियां हमारे टाइगर रिजर्व से, 350 से ज्यादा नदियां टाइगर रिजर्व से निकलती हैं। तो ये नदियां जब नीचे जाती हैं आबादी के क्षेत्र में, तो वहाँ की जो एग्रीकल्चर है, जो एग्रीकल्चर लैंड की जो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो जो स्थानीय लोग हैं वो ऐसी जगह जिनको पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, जैसे गन्ना है, जो हिमालय के जो क्षेत्र है वहां पर जो जंगल है अगर आप वो देखें
उसके नीचे जो जितने भी एग्रीकल्चर लैंड है वहां पर वो गन्ना बहुत उगाते हैं। तो पानी की बहुत आवश्यकता होती है, तो पानी तो बड़ी आसानी से मिलता है जंगलों से। तो गन्ना उगाने से गन्ने का एक फायदा और है कि उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। तो जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, जो हमारे तराई में टाइगर रिजर्व है, उत्तराखंड उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इस कारण समस्या है कि जो जो गन्ने की खेती है और जो जंगल है, वो दोनों का हैबिटेट जो है, वो दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। अगर आप गन्ने के खेत में देखें, और उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस भी ज्यादा नहीं होता है, आपको वीडिंग भी नहीं करनी पड़ती है, बार बार सफाई भी नहीं करनी पड़ती है, पेस्टिसाइड का आपको छिड़काव भी नहीं करना पड़ता। कहने का मतलब है कि जो गन्ने के खेत होते हैं वो एक तरह से जंगल का रूप धारण कर लेते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में बाघ भी आते हैं, बाकी वन्य जीव भी आते हैं। बाघ के लिए वहां पर भोजन भी है, सांबर भी है, और भी है। तो ऐसे आबादी के क्षेत्रों में या खेतों में जंगली जानवर वो आ जाते हैं। और कई बार ये भी होता है कि जिस क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ती है, तो वो उससे बाहर भी जा लगते हैं, दूसरे जंगल में अपना टेरिटरी बनाने के लिए। तो ऐसे समय में जंगल से जब बाहर जाते हैं, तो उनको पकड़कर जंगल में वापस लाना पड़ता है वन विभाग के द्वारा। जैसा आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बार लायन है कहीं कुएं में गिर जाते हैं। तो जैसा गिर नेशनल पार्क ने बहुत एक्सपर्टीज डेवलप की है, वो पूरे देश के लिए वो उदाहरण भी है। जो गिर नेशनल पार्क है, वहाँ के जो मैनेजमेंट है, वो पूरे देश के लिए उदाहरण है कि जो एनिमल रेस्क्यू है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कम समय में वो जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होती है, वहां पर जाते हैं और पकड़ कर लाते हैं। तो वैसे ही टाइगर के केस में भी ऐसी स्थितियों से बचने के लिए ऐसी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पड़ते हैं। लेकिन जो एक मैं महत्वपूर्ण जो बात बताना चाह रहा था, वो ये है, उसको पकड़ सकते हैं, उसको वापस जंगल में ला सकते हैं, लेकिन जो वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। कि जहाँ पर भी कभी जानवर दिखता है, तो लोग भीड़ लगा लेते हैं, और वो जानवर किसी पे भी अटैक कर सकता है। तो इसलिए जो मॉब का जो मैनेजमेंट है, वो बहुत मुश्किल है। की कटिंग दिखा रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। जो है वो जंगल से बाहर आ गई, और इसी तरह से शुगर केन फील्ड में वो बहुत दिन तक थी, 40 से 45 दिन तक, और आसपास बहुत सारे गांव थे। और वहां पर उस टाइग्रेस ने कम से कम 4 या 5 लोगों को मार दिया था, अचानक से जो सामने आ गए। तो सामना हुआ, तो टाइगर ने, यदि टाइगर क्योंकि इतना शक्तिशाली होता है, वो पंजा भी मार दे तो वो अ, आसानी से किसी को भी घायल कर सकता है। हमारा जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, उसमें भी एक प्रावधान है कि ऐसे वन्य जीव जो which have become dangerous to human life, और दे कैन बी कैप्चर्ड ऑल्सो। तो इनिशियली तो हम लोग उनको पकड़कर वापस जंगल में छोड़ने का ही प्रयास करते हैं, पकड़ने की, वो पिंजरे में पकड़े जा सकें। फिर हम कोशिश करते हैं कि ट्रैंकुलाइजिंग मतलब एक बेहोश करने की दवाई हमारी बंदूक में डाली जाती है, जो जानवर को दी जाती है दूर से, जिसके जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है, हम उसको पकड़कर दोबारा जंगल में छोड़ सकते हैं। और फिर जब सारी कोशिशें जब समाप्त हो जाती हैं, हम उसको पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब बाघ को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे स्पेशली जो गन्ने का खेत है, वो एक जंगल जैसा होता है, छोटा जंगल जैसा होता है। उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, उसको आइडेंटिफाई करना कहाँ पर है, वो उसको करना बहुत मुश्किल होता है, और आसानी से आप उसके पास जा भी नहीं सकते। इस पर्टिकुलर बाघ को पकड़ने के लिए हम लोगों ने हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया, ताकि ऊपर से हम उसको देख सकें। शुगर केन फील्ड है, वो इतने घने होते हैं कि वो हेलीकॉप्टर भी उसमें काम नहीं आया, और एक दो जगह उतारा भी हेलीकॉप्टर को, बाघ को पकड़ सके। और अल्टीमेटली फिर अंत में हमें उस बाघ को मारना पड़ता है, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको जो लोकल स्थानीय लोग हैं, उनका सहयोग आपको, है ना। हम सिर्फ एक बाघ की बात नहीं कर सकते। अगर हम एक बाघ को बचाने की कई बार बात करते हैं, नहीं नहीं हम इसको बाघ को नहीं मारेंगे क्योंकि बाघ जरूरी है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, जो स्थानीय लोग हैं, आपको उनका सहयोग नहीं मिलता है। और कई बार ऐसी भी स्थितियां हो जाती हैं, पॉइजनिंग जैसे, बहुत बार रिटेलिएटरी किलिंग बोलते हैं जिसको, वो द्वेष में आकर, जो स्थानीय लोग हैं, द्वेष में आकर किसी वन्य जीव को मार सकते हैं, क्योंकि आसपास जितने जंगलों के किनारे कोई वाटर होल है,
वहां पर वो पानी में डालने से वन्य जीवों की मौत भी होती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है स्थानीय लोगों का सहयोग लेने के लिए भी। और यदि वो प्रयास है वो विफल हो जाते हैं तो ऐसी दशा में आपको पकड़ना पड़ता है, नहीं तो वन्य जीवों ऐसी बिल्कुल एक्सट्रीम परिस्थिति में, हर एक परिस्थिति में मेरे ख्याल से 100 में से एक भी परिस्थिति, एक से कम ही ऐसी परिस्थितियां हो, 1% से भी कम ऐसी परिस्थितियां होंगी जिनमें वास्तव में वन्य जीव को मारना पड़े। एक बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग बहुत सुनते हैं कि मैन ईटर। मैन ईटर अगर मैं कहूँ तो मैन ईटर नाम से कोई चीज होती नहीं है। मानव वन्य जीव संघर्ष होता, हम कहते हैं कि वो मैन ईटर हो गया। तो मैंने जब फील्ड में एक्सपीरियंस किया, वो वास्तव में कोई मैन ईटर नाम की चीज नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जो बाघ है वो आदमी को ही खाना चाहता है। हमने बहुत बार देखा कि कभी किसी बाघ ने अचानक से कोई सामने आ गया, उसको मार दिया, खा भी लिया, लेकिन उसके बाद वो एनिमल कभी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आया। तो अगर हम कहें कि मैनीटर नाम की कोई चीज होती है तो हर बार उसको इंसान को ही मारना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। अर्थ है कि जब हम सपोज हम कहीं पर जा रहे हैं, मान लीजिए कॉरिडोर में जा रहे हैं, अचानक से सामने से कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो हम घबरा जाते हैं, अपना हाथ ऊपर करते हैं या उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार से वन्य जीवों के साथ भी है। सामने आ जाता तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है बेसिकली, और इसी इसी स्थिति में वो कई बार अटैक कर देता है आदमी के ऊपर, जिससे आदमी, तो इसीलिए हमने ये जो शब्द है इसको अपनी जो हमारी एसओपी है उससे हटा दिया है, लाइफ कि मानव जीवन के लिए जो हानिकारक है, ये शब्द हमने प्रयोग करना शुरू किया है। बहुत एक ऐसा चीज थी जो शुरुआत में अपने लाइवलीहुड के लिए करते थे, वो शो के रूप में तब्दील हुआ लोग, और अब वो राजा महाराजा या ब्रिटिश लोग। लेकिन अब जो उसके और सारे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण पोचिंग होती है। या तो वो आजकल बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें चीन और साउथ ईस्ट एशिया, जहां पर लोगों में आज भी वहम है कि टाइगर की हड्डी से या टाइगर के बाकी बॉडी पार्ट से कुछ ऐसी दवाइयां बनाई जा सकती हैं जो कि किसी बीमारी में उपयोग होती हैं। खाने के रूप में टाइगर एनिमल के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे वन्य जीव हैं छोटे छोटे, जैसे पेंगोलिन है, सी हॉर्स है, सी कुकुम्बर है, ऐसे वो खाने के जो डेलिकेसीज हैं उनको बनाने में इस्तेमाल होता है। तो इसके कारण भी, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बहुत से लोगों को ये शौकीन जिनके पास बहुत पैसा है, पश्चिमी देशों में लोग चाहते हैं कि हम हमारे पास ये हो, तो गर्व महसूस करते हैं उसमें, वो घमंड महसूस करते हैं, प्राउड महसूस करते हैं कि हमारे पास ये स्किन है, ये क्या है। तो इन सब कारणों से भी जो आज के जो समय में है वो पोचिंग होती है, ऐसी होती है जो कि भारत में खाने के लिए लोग करते हैं, मीट को खाने के लिए करते हैं। बहुत ऐसा कम है, स्थानीय लोग कुछ स्थानों पर हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। मुख्य रूप से जो पोचिंग होती है इस समय पर, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ट्रेड भी जो साउथ ईस्ट एशिया है वो इसका बिल्कुल हब है, और उसके माध्यम से फिर अल्टीमेटली ये चीन और जापान और कोरिया, इन देशों में जाता है, और यूरोपियन देशों में भी उसके पश्चात। और इसको रोकने के लिए भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें भारत सरकार के स्तर पर एक संस्था है, जैसे सीबीआई करती है ह्यूमन ऑफेंसेस के लिए इन्वेस्टिगेशन, उसी तरह से वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है जो कि प्रिवेंटिव मेजर्स लेता है ताकि पोचिंग ना हो। मिलकर सारी राज्य सरकार, जैसे एक मध्य प्रदेश में जो एंटी पोचिंग सेल है या फिर एंटी हंटिंग सेल है, उस सेल ने एक पेंगोलिन के केस में, एक पेंगोलिन का जो शिकार का केस था, एक सिंगल पेंगोलिन के केस में 150 लोगों को गिरफ्तार किया। यानी उन्होंने, जिस व्यक्ति ने पोचिंग किया, हंटिंग किया, वहां से लेके अल्टीमेटली ट्रेडर और जिसको ट्रांसपोर्ट करने वाले व्यक्ति, सर अल्टीमेटली जिस व्यक्ति के पास वो प्रोड्यूस जाना था, सभी लोगों को मिलाकर 150 लोगों को गिरफ्तार किया। बड़ा एक ट्रेड है। कहते हैं कि ये ड्रग्स और आर्म्स के बाद तीसरा सबसे बड़ा जो ट्रेड है, इलीगल ट्रेड, जो
वाइल्ड लाइफ है। बहुत बार इसमें बहुत से स्थानीय लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। स्थानीय लोग, लोकल ट्राइबल लोग, जैसे ये इस व्यक्ति की अगर आप फोटो देखेंगे, काफी लोग आप इसको जानते होंगे, संसार चंद इनका नाम है, जिन्होंने बहुत सारे वन्य जीवों को खुद भी मारा और ये बाकी लोगों के माध्यम से भी बहुत कोचिंग कराते थे। टाइगर के लिए खासतौर पर सरिस्का टाइगर रिजर्व और ऐसे क्षेत्रों में इनका बहुत एक नेगेटिव रोल रहा है, जिसमें इसके बाद इनको सजा भी हुई, 7 साल की भी सजा हुई, 2-2, 3-3 बार सजा हुई और अंत में ये एक जेल के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके पश्चात ये ऐसे व्यक्ति हैं जो इंटरनेशनल ट्रेडर हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो मैं मुख्य बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो एक्चुअली शिकार में इन्वॉल्व होते हैं वो स्थानीय लोग होते हैं, वो ट्राइबल लोग होते हैं बहुत सारे। और आपको हैरानी होगी कि ये जो टाइगर पोचर्स हैं, ये जो यहाँ पर बैठे हैं, ये एक अ, ऐसे स्टेट से आते हैं जहाँ पर एक भी टाइगर नहीं है। बहुत से लोगों को हैरानी होती है, जहाँ पर टाइगर नहीं है वहां पर टाइगर पोचर कैसे हो गए। तो ये एक ट्राइब है वहां पर, बाबरिया ट्राइब जिसको बोलते हैं, वो है जो हरियाणा में है। हरियाणा में वैसे तो टाइगर नहीं है, जंगल भी बहुत कम है, लेकिन इन लोगों को पुराने समय से ही इसकी इनकी एक्सपर्टीज थी हंटिंग में। तो ऐसे लोगों को उपयोग किया जाता है पैसे के लिए, और इन लोगों को बहुत कम पैसा उसके लिए दिया जाता है, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया अल्टीमेटली पता नहीं, ये वन्य जीव जो प्रोडक्ट्स उनको बेचते हैं। तो वन विभाग ने, जितने भी वन विभाग हैं, चाहे वो ऐसे वन विभाग हो जहाँ पर टाइगर है या नहीं भी है, करने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश में एक कम्युनिटी है पादरी, हंटिंग में इन्वॉल्व रहते थे। उस कम्युनिटी को भी काफी रूप से उन्होंने उनको रिहेबिलिटेट करके बाकी और जो लाइवलीहुड ऑप्शंस हैं, जीवन यापन के लिए जो बाकी माध्यम है उनके उनसे जोड़कर एक ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड उनको प्रोवाइड करके उनका रिहेबिलिटेशन भी किया है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। ये 2 स्लाइड में इसलिए भी दिखाना चाहता था कि जो पोचिंग है उसके अलग अलग तरीके क्या हैं। जो सबसे नीचे है, इसको करका बोलते हैं या टाइगर ट्रैप बोलते हैं अंग्रेजी में। अंदर 1 फीट अंदर दबाया जाता है और चाहे टाइगर जब वहां पर पांव रखता है अपना, तो उसमें उसका पांव फंस जाता है और उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। नहीं तो फिर वो जो शिकारी है उसको वो, क्योंकि वो बंधा होता है जमीन से, फिर इस चेन के माध्यम से तो डंडे से भी मार सकते हैं, क्योंकि बाघ जो है उसके बाद चल नहीं पाता, भाग नहीं पाता है। ऐसे इस प्रकार के जो इस्तेमाल होती हैं चीजें, इसको सूतली बम बोलते हैं, जो जमीन के नीचे गाड़ा जाता है, जो वाइल्ड पिग या जंगली सुअर को मारने के लिए। या फिर स्नेयर जिसको बोलते हैं, कई बार लोग इसको खेतों के आसपास लगाते हैं, जो डियर प्रजाति के जो वन्य जीव हैं उनको मारने के लिए। चीजों के साथ साथ एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है देश के सामने, बाघ संरक्षण के लिए या अन्य रूप से सामान्य वन्यजीव संरक्षण के लिए, एक जो चुनौती मैं जो मानता हूँ इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद, जो बहुत बड़ी चुनौती है, टूरिज्म से भी है। क्योंकि टूरिज्म जब अनरेगुलेटेड है, तो टूरिज्म के कारण भी बहुत सारे क्षेत्रों में जो वन्य जीव हैं, बाघ हैं या बाकी वन्य जीव हैं, उनका बिहेवियर चेंज होता है। कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम बेटिंग करते हैं टूरिज्म के नाम पर, कि जंगली जानवरों को किसी को दिखाना है। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने अभी सुना होगा कि 2 हफ्ता पहले या 3 हफ्ता पहले एक केस था, वो एक कोर्ट में केस चला था काफी साल तक, कि जो है वो शेर को बेटिंग कर रहा था। कोई जो वो जो मुर्गा है उसके माध्यम से वो उसको बेट बेट करके उसको पकड़ने, उसको पास लाने की कोशिश कर रहा था। और जो टूरिस्ट लोग थे वो भी उसको देख रहे थे। तो उसमें गुजरात की एक लोअर कोर्ट ने 7 साल की सजा दी और कुछ लोगों को 3 और 1 साल की भी सजा दी है। तो ये टूरिज्म का एक जो खराब रूप है वो भी सामने देखने को मिल रहा है। और लोग जो वन्यजीव को देखने जाते हैं, तो वो जंगल को या फिर वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको एंजॉय करने के लिए बहुत से लोग नहीं जाते हैं। वो सिर्फ शेर को देखने जाते हैं या टाइगर को देखने जाते हैं या हाथी को देखने जाते हैं। ये आपको सिर्फ देखना ही है, तो ये आप किसी सफारी में या फिर आप उसको जू में भी देख सकते हैं। बहुत से लोग, आप लोगों में से जो गिर नेशनल पार्क में गए होंगे,
वहां पर बाहर में एक सेंटर है या फिर एक सफारी भी है। यदि आपने सिर्फ बाघ ही देखना है तो आप सफारी में भी जाके देख सकते हैं, देवलिया है जिसको बोलते हैं, देवलिया इंटरप्रेटिंग सेंटर। यदि आप एक जंगल को देखना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, उसकी सुंदरता को देखना चाहते हैं, तो आपको जंगल में जाते हैं तो आपको एक बिहेवियर आपका सही होना चाहिए, जिससे कि वन्य जीवों पर कोई उसका विपरीत असर ना पड़े। पिक्चर हो जंगल में तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप ऐसी पिक्चर जंगल में जब देखते हैं, एक मैं बेचारा ही कहूंगा, देखिए एक बेचारा टाइगर, उसको आप देखिए कितने लोगों ने घेरा हुआ है। कम से कम 200 से 250 लोग होंगे जो उसको एक साथ उसको उसको देख रहे हैं। बाघ है या बाकी वन्य जीव हैं, उनका बिहेवियर भी चेंज होता है। और जब टूरिज्म एरिया में मैंने ये भी देखा है, टूरिज्म एरिया में जो की जो टेरिटरी है वो बहुत कम हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि इतना ज्यादा उनको डिसाइड कर जाते हैं, और ह्यूमन की प्रेजेंस से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है धीरे धीरे। तो और वो ह्यूमन की प्रेजेंस में आने के बाद होती है, तो उससे भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। यदि स्ट्रेस लेवल बढ़ता है या ऐसे जेनेटिक इफेक्ट उसमें कुछ आते हैं, तो भविष्य में भी ये हमारे जो वाइल्ड स्टॉक है, तो किसी डिजीज आउटब्रेक के लिए बहुत एक चिंता का विषय है। और टूरिज्म है, उसको एक सही तरह से, सही तरीके से, सही माध्यम से रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। और खाली वन विभाग ही नहीं, वन विभाग तो अपनी तरफ से जितना प्रयास हो सकता है वो करता है। एक सामान्य नागरिक के रूप में भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा जो बिहेवियर है वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर रहे। आप ये देखिए आजकल जब एक जो टूरिज्म का जो ये रूप है, इसका जो होने का ऐसा कारण है वो एक मोबाइल फोन्स भी है, क्योंकि जो बड़े लेंस से कैमरा लेके जा रहे हैं, हाँ वो भी गलती करते हैं हालांकि कई बार, लेकिन वो फोटोग्राफी करने के लिए जाते हैं। लेकिन आज आप देखिए हर किसी व्यक्ति के पास मोबाइल होता है, तो मोबाइल में बहुत ज्यादा जूम तो होता नहीं है। वो व्यक्ति सोचता है कि मैं जितना पास से जाके मैं इसमें अपने मोबाइल में कैप्चर कर सकूं वो अच्छा होगा। तो इसके कारण भी कई बार हम जिप्सी ड्राइवर को या जो हमारे जो व्हीकल के ड्राइवर को फोर्स करते हैं कि जब पास लेके जाएं। महत्वपूर्ण है कि हमारा जो बिहेवियर है वो एक प्रॉपर बिहेवियर है जब भी हम टूरिज्म के लिए जाते हैं। अ, ये मेरा जैसे इसमें भी देखें आप, जब पैंडेमिक के बाद जब टूरिज्म शुरू हुआ, अगर आप इस व्यक्ति को देखें, इसने मास्क पहना हुआ है, यानी कि ये जो पिक्चर है ये पैंडेमिक के बाद की है। उसके पश्चात भी लोगों ने इस जिम्मेदारी को शायद अभी तक नहीं समझा है, और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खाली वन्य जीवों के लिए नहीं, हमारे लिए भी, हमारी सेफ्टी के लिए और हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वगैरह कर रखी जाए, और उनके बहुत नजदीक न जाया जाए, जिससे हमारी सेफ्टी भी कोई ब्रीच ना हो सके। और कई बार देखा आपने, जानवर जो है वो इतने टूरिज्म फ्रेंडली हो जाते हैं, कई बार हम भी, ये हमारी भी गलती है, और सोचते हैं कि ये तो टूरिज्म है और हम ये जो एनिमल है बहुत टूरिज्म फ्रेंडली है, हम इसके पास जा सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत से लोग वन्य जीवों को फीड करते हैं, भोजन खिलाते हैं, जैसे बंदर है या बाकी किसी डियर स्पीसीज को, और वो इसको पुण्य का काम समझते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये पुण्य नहीं है, ये पाप है। को या बाकी वन्य जीव को खिलाते हैं, तो वो जंगल छोड़कर उसी आबादी के आसपास रहने लगते हैं, और उस आबादी के आसपास रहने लगते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कैप्टिविटी में आती हैं, जनरली जू में आती हैं। रोड के साइड में अगर आप देखें, जहां पर बहुत सारे बंदर हैं, एक साथ बैठे हैं, और उनको मालूम है कि लोग उनको खिलाएंगे, तो वहीं पर बैठे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उनके देखेंगे, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पाँव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये उचित नहीं है कि हम जो जंगली जानवर हैं उनको हम फीड कराएं आर्टिफिशियल माध्यम से, खाने के लिए या बाकी चीजों से, कि उनका उनका बिहेवियर बहुत चेंज होता है, और जो नेचुरल उनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए ये दो जिप्सी हैं, बहुत दूर हैं, और इससे पीछे ये मेरा पेट्रोलिंग के समय का एक फोटो है जो मैंने लिया था कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। वाली जिप्सी वो बहुत पीछे ले गया, और ये इधर वाली जिप्सी ये भी पीछे ले आया, और वो हाथी अपने आप से चला गया। आप लोगों ने बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया में वीडियो देखे होंगे जिसमें हाथी जिप्सी के पीछे भाग रहा है। वो इसीलिए होता है कि जब हम उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, जब हाथी को या बाकी वन्य जीवों को लगता है कि वो हमें इनसे खतरा है,
अटैक करने का प्रयास करते हैं या पीछे भागने की कोशिश करते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म होना बहुत जरूरी है। प्रोटेक्शन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए भी दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग जंगल में एंजॉय करने के लिए जाते हैं टूरिज्म के माध्यम से। हम लोग बहुत इस बात में फख्र भी महसूस करते हैं कि हमारे देश में इतने टाइगर हैं, इतने शेर हैं। जो एशियाई शेर हैं वो सिर्फ गिर में मिलते हैं। बाघ पूरे विश्व में 70% भारत में है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि उसके पीछे जो एफर्ट है लोगों का और उसके पीछे जो मेहनत है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेहनत करता है, वो भी हमें समझनी पड़ेगी। वो बहुत काबिल तारीफ है। अगर आप ये 2-3 पिक्चर्स देखें, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो बेसिकली अपने परिवार से भी दूर रहते हैं, क्योंकि वो जंगल में अपने परिवार को तो रख नहीं सकते हैं। अलावा उनको कोई बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, उनको बहुत दूर तक जाना पड़ता है। और उनकी जो ड्यूटी है वो 24 घंटे की है। ऐसा नहीं है कि हर 8 घंटे बाद वो ड्यूटी चेंज होगी। उनको एक क्षेत्र दिया जाता है, बीट ऑफिसर होते हैं, वो पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी उनकी होती है। ये जो फोटो है नीचे, ये काजीरंगा टाइगर रिजर्व की है, जहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क के बहुत सारे क्षेत्र में पानी कई बार भर जाता है। बहुत सारा इनंडेशन होता है ड्यू टू फ्लडिंग ड्यूरिंग मानसून। तो ऐसे में वो पैदल भी नहीं चल सकते हैं और वहाँ पर बाढ़ भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल समय में तो पैदल चल सकते हैं, लेकिन ऐसे समय में जब चलने के बहुत कम रास्ते हो और पानी चारों तरफ हो तो बहुत मुश्किल होता है। और बोट, छोटी छोटी बोट्स का इस्तेमाल करते हैं, हाथी का इस्तेमाल किया जाता है, पैदल चलते हैं। बहुत बार, कई बार ऐसा भी होता है कि पैदल चलते समय अचानक से कोई वन्य जीव अटैक कर देता है। अभी 2 साल पहले एक मेरे बहुत अच्छे मित्र भी थे, अधिकारी थे, मणिकंदन, बांदीपुर टाइगर वहाँ पर फील्ड एक्टर थे। तो उस समय पर उनको एक हाथी ने, जंगली हाथी ने अचानक से मृत्यु हो गई थी। तो समझना होगा और अप्रिशिएट करना होगा कि एफर्ट कितना जाता है इन सब चीजों के पीछे, जो कि देश में आज इतने हमारे देश में इतने सारे नेगेटिव एस्पेक्ट होने के बावजूद, इतनी जनसंख्या होने के बाद भी, हमें इतने लोगों को फीड करना है, उसके बाद भी इतनी वन्य जीवों की संख्या हमारे देश में है, इतना हैबिटेट है, और वो भी ऐसे ऐसे वन्य जीव जो बाकी विश्व में कहीं नहीं है। तो एक बड़े गर्व की बात है, फख्र की बात है, और हमें कृतज्ञ होना चाहिए ऐसे स्टाफ पर जो हमारे लिए वन्य जीवों को बचा के रखता है। तो इसके साथ ही में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, हमने प्रोजेक्ट टाइगर में विलेज रिलोकेशन का काम किया है कि बीच में यदि ट्राइबल कहीं पर गाँव है तो उनको बाकी चीजों की जो एक्सेसिबिलिटी वो नहीं है, ना स्कूल पास में है, ना में, तो ऐसे गांवों को हमने एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट किया है। ऐसे स्थानों पर जहां पर जहाँ से स्कूल पास में हो और जहां पर डिस्पेंसरी पास में हो, ताकि उनको बाकी जो बेनिफिट हैं एक सोसाइटी के वो भी मिल सके। और ये काफी इफेक्टिव प्रोग्राम रहा है और हमने उसके डबल दो फायदे हैं। इसको विन विन सिचुएशन भी बोलते हैं। जो जंगल में रह रहा है वो बाहर आके उसका एक सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होता है, और उसी प्रकार से जंगल के अंदर में बहुत सारा एरिया ऐसा मिल जाता है जो इनवॉयलेट है, जो बिल्कुल सैक्रोसैंक्ट है, वहां पर कोई आबादी नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करना चाहूंगा इस कोट के साथ। एक ऑथर है ऑल्डो लियोपोल्ड, उनका लिखा हुआ कोट है ये, जो कहते हैं कि वी अब्यूज लैंड बिकॉज वी रिगार्ड इट एज अ कमोडिटी belonging to us. When we see land as community to which we belong, we may begin to use it with love and respect. कहने का मतलब ये है, यदि हम अपने आप को भी जमीन और जो बाकी चीजें हैं उसका एक हिस्सा समझें, तो हम उसको लव और रिस्पेक्ट, प्यार और उसको रिस्पेक्ट की भावना से देखने लगते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, सच ए इंफॉर्मेटिव एंड वंडरफुल सेशन सर। सर हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन रिसीव किए हैं, पर कुछ क्वेश्चन जो ऐसे थे जो बीच में उसका आंसर मिल गया है, तो सर हमने उसको सॉर्ट आउट किया है अभी। तो हमारे पास अभी जो क्वेश्चन बचे हम लोग चालू करते हैं सर। तो सर हमारा पहला क्वेश्चन जो है उसमें ऐसा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट ऑफ बंगाल टाइगर एंड वाइट टाइगर। वाइट टाइगर और जो बंगाल टाइगर है अपना रेगुलर, उसका हैबिटेट के दोनों में क्या डिफरेंस है सर?
दोनों के हैबिटेट में कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट जो व्हाइट टाइगर भी है वो भी रॉयल बंगाल टाइगर ही है, वो उसी से आया है। वो सिर्फ वो आप मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ, यस सर। ओके, तो वो सिर्फ एक जेनेटिक कारणों से, वो एक कुछ जेनेटिक कारणों से और जो फर्स्ट व्हाइट टाइगर था जो रीवा से मिला था, उसके जो पेरेंट्स थे वो दोनों नॉर्मल टाइगर थे। तो उसके बाद होगा वो जेनेटिक कारणों से कई बार ऐसा होता है कि कई बार आप सांबर भी देखते हैं वो सफेद होता है। जी, वो भी सफेद हो सकता है, वो जेनेटिक कारणों से होता है। उसका ऐसा नहीं कि वो अलग से कोई अलग स्पीसीज है, वो रॉयल बंगाल टाइगर ही है। यस सर, यस सर। सर ये जो टाइगर का जो कैंपेन चलता है सेव टाइगर करके, तो उसके हिसाब से सर लास्ट 2 साल में हम लोग कितने टाइगर को मतलब कंजर्व कर सके किया होगा, या कितनी उसकी संख्या जो है वो कितनी बढ़ी होगी सर? जो मैंने आप लोगों को एक स्लाइड दिखाया था जिसमें मैंने बाघों की संख्या का दिखाया था कि 2006 के बाद से जब से साइंटिफिक मॉनिटरिंग शुरू हुआ 1411 से अब हमारे देश में 2967 2967 टाइगर है। मतलब वो एक एस्टिमेटेड नंबर है, लेकिन जो बाघों की संख्या है वो लगभग 3000 से 3500 या 4000 के आसपास। जी सर। सर लास्ट क्वेश्चन एक अपना ऐसा है कि हमारे जो ऋषि मुनि जो थे वो जब बैठते थे तब के लिए, तो उसके नीचे वो आसन लगा के बैठते थे, वो भाग के जो खाल है उसका, तो उसके पीछे का रीजन क्या है सर यूज करने का? मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो मैंने जितना पढ़ा है, जी सर, पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को किसी चीज का रूप माना जाता है। जैसे बाघ एक शक्ति का रूप माना जाता है उसको। जी सर। जैसे शक्ति का रूप माना जाता है, तो वो कारण रहे होंगे कि हम बहुत से लोग ऐसा करते थे। हालांकि उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन कोई ऐसा नहीं है। जी सर, जी सर। थैंक यू सर। तो अभी हम लोग सेशन को कंक्लूड करते हैं सर। सर थैंक यू सो मच फॉर सच ए ब्यूटीफुल नाइस इंफॉर्मेटिव सेशन सर। ऑन बिहाफ ऑफ गुजरात साइंस सिटी आई एम वेरी मच थैंकफुल ऑन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात सर। हमारे पूरे पार्टिसिपेंट्स की ओर से भी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस टाइम फॉर द लेक्चर। सर दूसरा भी एक चीज़ है कि हम लोग हर महीने जो भी साइंस पॉपुलराइजेशन प्रोग्राम करते हैं, सो वी आर प्रिपेयरिंग सर ई बुक फॉर एंटायर कंटेंट इंक्लूडिंग जो भी हमारे यूट्यूब का जो चैनल है उसका लिंक रख के एक्सपर्ट के नाम के साथ में, उसमें एक सर फीडबैक फॉर्म भी हमारा होता है। तो सर आई विल शेयर यू द ई बुक लिंक टू यू सर। तो सर हम लोग ये करते हैं। और दूसरा सर हम लोग ये जो लेक्चर है वो यूट्यूब में भी अपलोड करेंगे। काफ़ी जो लोग आज अटेंड नहीं कर पाए वो लोग उसको अटेंड कर सकते हैं सर। तो सर थैंक यू अगेन वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच फॉर सच ए ब्यूटीफुल सेशन सर। ऑल्सो आई थैंकफुल टू ऑल पार्टिसिपेंट्स attended the lecture today. So thank you sir, thank you so much sir. Thank you very much.